سے اور ایک حیت کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ حجویہ قصائد اور مدحیہ قصائد، ٹھیک ہے؟ اور ساخت کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ ایک خطابیہ ہو جائے گا، ایک تمہیدیہ ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہو گئیں۔ اب ہم یہاں تک پہنچے تھے قصیدہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، اب اس چیز کو ہم دیکھیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو اجزائے ترکیبی کتاب سامنے ہے، کھل گئی ہے، سب کو دکھ رہی ہوگی، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے قصیدے کے اجزائے ترکیبی، کہاں گئی؟ صحیح تو ہے۔ یہ قصیدے کی اجزائے ترکیبی۔ کرے مرثیے کی طرح یا اور دیگر اصناف شعر کی طرح قصیدہ بھی ایک خاص قسم ہے نظم کی طرح، یا ایک خاص قسم کی نظم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نثر نہیں ہے تو نظم ہی ہے، جس کا مزید جائزہ لینے کے لیے یا مزید جائزہ کے لیے اس کے اجزاء ترکیبی پر نظر ڈالنا ہوگی، نظر ڈالنی ہوگی۔ قصیدے کے 4 اجزاء ترکیبی ہیں، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے: تشبیہ، گریز، مدح، دعا اور خاتمہ، یا اس کو یہ کر لیجیے: تشبیہ، گریز، مدح، مدعا اور خاتمہ یعنی دعا۔ آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ تشبیہ، گریز، مدعا تو رہے گا، مدح یا دعا دونوں میں سے کوئی ایک، یا دونوں مان لیتے ہیں۔ تو اگر عمومی طور پر کیا جائے تو قصیدے کے 5 اجزاء ترکیبی لوگ بتاتے ہیں، لیکن اصلاً یہ 4 ہی ہے۔ اصلاً یہ مدح ہو یا دعا ہو، کسی کی تعریف کرتے ہیں تو دعائیہ کلمات سے ہی تعریف کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے نا۔ کسی کو کہتے ہیں ارے بڑا اچھا انسان ہے، تو اس کے حق میں وہ دعا ہی تو ہے کہ بڑا اچھا انسان ہے۔ تو قصیدے کا اجزاء ترکیبی کتنے ہوئے؟ 4۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تشبیہ کرے، تشبیہ سے وہ اشعار مراد لے جاتے ہیں جو قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں، یعنی قصیدے کی ابتدائیہ جو اشعار ہے اسی کو ہم کہتے ہیں تشبیہ۔ یا یوں کہیے کہ جن اشعار سے قصیدہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ عربی شعراء اس میں عموماً عشقیہ اشعار قلم بند کرتے تھے، اسی رعایت سے اس کو تشبیہ یا نصیب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ فارسی اور اردو میں تشبیہ میں عشقیہ مضامین کی تخصیص نہیں رہی، بلکہ ہر قسم کے مضامین نظم کیے جانے لگے۔ اب عربی میں اور اردو میں کیا فرق ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عربی اور اردو میں فرق ہے کہ عربی کا جو قصائد ہیں اس کے جو اولین شعر ہوتے ہیں اس میں عشقیاں باتیں ہوتی ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اردو میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے مضامین اس میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے موسم بہار، آج کل حیدرآباد کی طرف موسم بہار ہے نا، بارش ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً۔ موسم بہار، واردات حسن و عشق، رندی و سرمستی، دنیا کی بے ثباتی، زمانے کی شکایت، آسمان کا شکوہ، ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ علم و فن کی ناقدری، پند و موعظت، مکالمہ و مناظرہ، خواب کا بیان، اور کاریں فخر و خود ستائی، ستائی مطلب خود کی تعریف، شاعری کی فن شعر سے بحث، معاصرین، دیکھیے معاصرین یہ معاصر لکھا ہے تو یہ آئین سے ہونا چاہیے، معاصرین یعنی ہم عصر لوگ، پر تان و تاریز مطلب اپنے عمر کے یا اپنے ایک شاعر دوسرے شاعر کو برا بھلا کہتا، وہی بات ہے۔ تاریخی واقعات اور ذاتی و ملکی حالات وغیرہ تشبیہ کے خاص خاص موضوعات ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اردو کے جو تشبیہ کے اشعار ہوتے ہیں اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ عشقیہ اشعار ہوں،
बल्कि जितने मौज़ूआत हैं ये सारे मौज़ूआत उसमें सुमो दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। आगे भी और बता रहे हैं, हयात, नुजूम, मंतिक, फ़लसफ़ा, हिकमत, अखलाक, तसव्वुफ़, मौसीकी और दीगर मशरिकी उलूम व फ़नून के तसव्वुरात और इस्तिलाहात पर भी अक्सर तशबीब के अशार की बुनियाद रखी जाती है। कभी कभी एक परी का जिक्र किया जाता है या खुशी को मुजस्सम तस्वुर करके उसकी आमद और सरापा बयान। खुशी को मुजस्सम मतलब क्या है, इससे इस्तिलाह का माना कोई समझा पाएगा आप में से? जैसे मिसाल के तौर पर सबरस आपने पढ़ा है उसके किरदार को, गम, दिल, हुस्न। हुस्न क्या है? कोई मुजस्सम चीज तो नहीं है ना, महसूस करने वाली चीज है। हुस्न, गम महसूस करने वाली चीज है, दिल महसूस करने वाली चीज है। दिल के अंदर जो एक जान है, अगर उससे वो निकल जाए तो फिर उस पर दिल का इतलाक नहीं होगा, गोश्त का एक लोथड़ा हो जाएगा। करें खुशी को मुजस्सम करके, यानी खुशी को क्या है, एक किरदार बनाकर उसकी आमद और सरापा बयान किया जाता है। इन मजामीन के साथ तशबीब में गज़ल की शमूलियत का भी आम रिवाज है। दरअसल कसीदे का यही वह हिस्सा है जिससे उसके दायरे अमल में उसात और तनव्वु पैदा होता है। किससे? तशबीब से। तो तशबीब जान गए आप? तशबीब का एक शेर है, देखिए, सजदे शुक्र में है शाखे सरदार हर एक, शाखे सरदार हर एक, देख कर बागे जहां में करम करम अज़्ज़ा वजल। समरदार होना चाहिए। जी जी जी, वही, वो समर होना चाहिए, शाखे समर। समर का मतलब होता है फल, यानी वो डाले जिस पर, वो सेब या आजकल जो है अमरूद का ज़माना है, या इसी तरह जामुन का ज़माना है, वह शाख जिस पर फल आए हों, शाखे समरदार हर एक। यानी कोई बागबान, जैसे हम किसान हैं, हमारे पास आम के बागात हैं, तो जब हम जाते हैं कि जिस ज़माने में आम ज़्यादा होते हैं तो देख खुशी होती है, नहीं होते हैं तो अजीब सा लगता रहे, पता नहीं क्या हुआ, नहीं आया। तो जुबान से सही सनात देख लीजिए ना, कौन सी सनात चाह रही हैं आप, पहले सवाल तो समझिए, जहन को हाजिर रखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रट के आपको फ़ायदा होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी, देखो उसमें तालिल जवाब भी आ गया, और कुछ चीज़ें जो समझना ज़रूरी है आपको। सनात आप एक क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे, पहले आप उर्दू सीखिए, उसके बाद सनात भी आपकी कुदरत में आ जाएगी। पहले सवाल समझिए। सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, देख कर बाग जहां में करम अज़्ज़ा वजल। हालांकि देखिए, शाखे समर को देखकर कोई सजदा शुक्र अदा नहीं करता है, बस खुश होता है। इस खुशी को ताबीर कर दिया सजदे शुक्र से। ऊपर कहा था ना कि खुशी को मुजस्सम कर देंगे, और सजदे का तस्वूर एक तजसीम से है और एक जो है कि किरदार से है। जुबानी सजदा नहीं होता है, बल्कि एक हैत है, एक तरीक़ाकार है। इस खुशी को इसे ताबीर कर दिया सजदे शुक्र से। और तालील में क्या होता है, खूबसूरत शेर के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ों को बयान किया जाता है जो असल में ना हो। चलिए, तशबीब का पहला शेर, कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। अब ये सवाल आ जाए कि तशबीब में जो मतला होता है, कसीदे में जो मतला होता है, उसका दूसरा नाम क्या लिया जा सकता है? तो तशबीब। और इसीलिए शायर के कमाल का इम्तिहान शुरू हो जाता है। मतला के लिए यह शर्त है कि वह बुलंद पाया और शगुफ्ता हो। शगुफ्ता मतलब नाम नहीं, अच्छा हो, बेहतरीन हो, इसमें कोई नई और जिद्दत आमेज बात बयान की जाए, सुनने वाला खुसूसन ममदूह हमतन गोश हो जाए। यानी इस तरह शुरू करें कि किसी भी प्रोग्राम का या किसी भी क्लास का या किसी भी ज़िंदगी का अब आगाज देखते नहीं, शादी होती तो कितनी खूबसूरती के साथ सजाई जाती है, दो ख़ानदान को और पूरे गांव को, दो दो महल्ले को, बल्कि दो दो ज़िले को एक साथ कर दिया जाता है। क्यों? ताकि यहाँ से जो ज़िंदगी शुरू हो एकदम हमतन गोश हो, मतलब जिससे शादी हो रही है उसकी और जिसकी हो रही है उसकी, दोनों के ज़िंदगी एक दूसरे से मिल जाए। कह रहे हैं जब कसीदा कहे जाए इस तरह शुरुआत हो कि बिल्कुल सुनने वाला उकताए नहीं, बल्कि उसको लगे कि और सुनाइए, और इसके आगे क्या है, इसके आगे, जैसे गांव में लोग कहते हैं ना किस्सा, तो छोड़ देते हैं, फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, वही होना चाहिए। हमतन गोश हो जाए और बात के आशार का अच्छा असर मुरतब हो। ये बात हो गई।
आ गया जी। तशबीब की पहली शर्त ये थी कि क्या हो, वह बुलंद पाया हो और शगुफ्ता हो, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त क्या बता रहे हैं, देखिए, इसमें जो मज़ामीन नज़्म किए जाएं वह ममदूह के मुरतबा और मर्तबा, ममदूह के मर्तबा और हैसियत से मुनासिबत रखते हों। मतलब ये कि जो मज़ामीन बयान किए जाएं तो उस हिसाब से, अगर कोई उस्ताद है तो उसको बादशाह ना बनाया जाए, या कोई बादशाह है तो उसको बाप ना बनाया जाए, बल्कि अलग अलग मकाम रखा जाए। कोई बीवी है तो साली की जगह अपना रखा जाए, कोई माँ है तो उसको बहन की जगह अपना रखा जाए। इस तरह होना चाहिए। जिसके बारे में शेर कह रहे हैं उसके मकाम, उसकी इल्मी हैसियत और उसके तरीक़ेकार को जान लें, फिर शेर कहें, ताकि उसमें और बाद के मदही आशार में कोई मानवी तजाद ना हो। ऐसा नहीं कि पहला शेर में कुछ और बयान कर रहे हैं और आखिर शेर तक जाते जाते कुछ और बयान करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तशबीब के लिए एक और शर्त ये बताई गई है कि उसके आशार मदह से ज़्यादा ना हो। कितने शेर हो गए? तशबीब में 3 शर्तें हो गई, चीज़ मैं बता देता हूँ। पहली शर्त क्या हो, यहाँ देखिए, बुलंद हो और शगुफ्ता हो, यानी अल्फाज ऐसे हों जिद्दत आमेज हों, नए अल्फाज हो, घिसी पिटी नहीं कि किसी का उठा के कॉपी कर लिए। दूसरी शर्त क्या है कि जो ममदू हो, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जो माशूक हो, उसकी हैसियत को देख लें, उसके रंग रूप को देख लें, उसके हिसाब से तारीफ करें, उसका कुछ तारीफ नहीं करें। ये दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त यह है कि तस्बीब के लिए एक और शर्त ये लगाई गई, उसके आशार मदह के आशार, ऐसा ना हो कि मदह चूंकि सराहतन तारीफ की जाती है, ऐसा हरगिज ना हो कि तशबीब के आशार इतने ज्यादा हो गए कि मदह के आशार कम पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये थे तशबीब। अब यहां से शुरू होगा गुरेज। तशबीब के बाद आता है गुरेज। गुरेज का लफ्जी माना क्या होता है? बात से बात निकालना, कहते हैं ना बात का खाल निकालना। जैसे कल बात हो रही थी गुरेज, तो दूसरा नाम अगर दे दिया जाए इसी इस्तेलाह में से तो तमहीद हो जाएगी, यानी बात बांधना। अब जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से, मानो अरे यहाँ गए तो वहाँ गए, अरे बीच में रुक गए, गाड़ी नहीं मिली, सीधे कहिए ना नहीं पहुँच पाए, बात खत्म। तो इसको जो इधर उधर बहाना लगाना है, इसको कहते हैं गुरेज। बात से बात को निकालना, बात फैलाना। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, यहाँ से पढ़िए बुलंद आवाज से। तशबीब के बाद गुरेज। तशबीब के बाद शायर किसी तकरीब से ममदूह का जिक्र छेड़ता है, उसको गुरेज कहते हैं। अरबी तनकीद में उसको दो सरकश बैलों को एक जुए में जोतने से ताबीर किया गया है, जिसका सबब ये है कि ये हिस्सा तशबीब और मदह के बेरब एज़्ज़ा में रब्त पैदा करता है। गुरेज का सबसे बड़ा हुस्न ये ख्याल किया जाता है कि तशबीब कहते कहते शायर मदह की तरफ इस तरह घूम जाए जैसे बात में बात पैदा हो गई हो। गुरेज यही वह खूबी है जिसकी वजह से वह कसीदे का मोहतमिम बा सर क्या है यसर मुत्तहम बिशान या मुत्तहिम बिशान, अहम शान, मोहतमिम नहीं है वरना मदरसा में मुत्तहिम मोहतमिम हो जाएगा। हाँ बिशान हिस्सा और शायर के कमाल का मेयार समझा जाता है। गुरेज एक शेर के जरिया से भी किया जाता है और उसके लिए एक से जायद अशआर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी शोरा इब्तदा में गुरेज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं करते थे। बस। अब तरतीब भी कभी कभी लगाने के आता है कि तशबीब के बाद गुरेज है या मदा है या दुआ या हुस्न तलब है, क्या है। तशबीब के बाद दूसरा नाम आता है गुरेज। गुरेज का मतलब क्या होता है? शायर किसी तकरीब से ममदूह का जिक्र छेड़ता है, उसको गुरेज कहते हैं। साफ लफ्ज, कुछ भी नहीं समझना है, वन टाइम बहुत लगेगा इसमें, साफ लफ्ज लिखा है। जिक्र छेड़ना, जब किसी आवाज नहीं आ रही है सर, और लोग बताइए आवाज नहीं आ रही है? आ रही सर। सर क्लियर है, आवाज आ रही है। बोलना नहीं है, कमेंट करना है। ठीक है, तो ये है गुरेज। ठीक है,
बात फैलाने को गुरेज कहते हैं। कुछ खास नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। अब गुरेज के बाद मदह, तारीफ। कसीदे का तीसरा हिस्सा मदह है, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। अब जाहिर सी बात है, आप समझिए ना, आप भी और हम भी जिस उम्र से गुजरे हैं, या हमारे माँ बाप, फितरत में इंसान की फितरत में उनसियत है, उनसियत लगाव। उनसियत किसको कहते हैं? लगाव को, कल्बी लगाव या ज़हनी लगाव या जिस्मानी लगाव या जगह से लगाव। इंसान जहाँ रहता है, रहते रहते उससे मानूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर देखिए, चावल से यूपी और बिहार के लोग कभी नामानुस होते हैं क्या? चावल और रोटी से नहीं। जानते हैं कि जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी तारीफ करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आप बाजार में जितना दिखा लें। वही कर रहे हैं शायर की ममदूह। शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है, और उसका औसाफ क्या कुछ हो सकते हैं, देखिए। ममदूह की हैसियत की मुनासिबत से मदह में बिलउमूम जाहो जलाल, जरो दौलत, जर का मतलब सोना चांदी, जरो दौलत, अजमतो बुजुर्गी, शराफतो नजाबत, नजाबत उसी से नजीब नजाबत है, शुजाअतो दिलेरी, अदलो इंसाफ, खुदा तरसी व दी पनाही, इफ़्फ़त व पाकदामनी, क़िनाअत व रास्तबाजी, सखावत व मेहमान नवाजी, खुल्क व मुरूवत, इल्म व हया, फ़यूज़ व बरक़ात, कश्फ़ व करामात, इल्मियत व काबिलियत, इबादत, रियाजत और हमीयत व खुददारी वगैरह का बयान किया जाता है। यानी जो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप खतीब हैं तो आपकी खिताबत और शुजाअत और बोलने की जो हयात होती है उसको बयान किया जाएगा। और अगर आप लंबे हैं, बहादुर हैं, तो शुजाअत व दिलेरी से, अगर अदल इंसाफ के मालिक हैं, अदल इंसाफ के नाम, यानी जो भी औसाफ उसके अंदर पाया जाएगा ममदूह के, उसकी तारीफ की जाती है। इसी तरह ज़ाती औसाफ के अलावा मदह में ममदूह के सादो सामान की भी तारीफ होती है। सवाल अगर आ जाए कि कसीदे के अज्जा में जो मदह है उसमें सिर्फ ज़ाती तारीफ की जाती है, गलत हो जाएगा, सिर्फ लग के गलत हो जाएगा, बल्कि ज़ाती के अलावा उसके मुतअल्लिक जो चीज़ें होती हैं या रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं उसकी भी तारीफ, जैसे तलवार, तीर कमान, तरकश, घोड़े, हाथी और मतबख वगैरह, यानी उसके उसके जिंदगी की जो हाजात जरूरियात उसकी भी तारीफ की जाती है। बुजुर्गान दीन की मदा में घोड़े और तलवार की तारीफ के अलावा उनके मदफन और रोज़ा वगैरह की शान में भी अशार कहे जाते हैं, यानी खुद उनकी ज़ात और मुतअल्लिक़ात ज़ात की भी तारीफ की जाती है। मदह के मज़ामीन की चंद मिसालें हस्बे ज़ैल हैं। देखिए, जुज़ माह तो करीना नहीं, तो करीना नहीं तुझ कमान का, कमान तरकश का छुट, खुतूते शुआई नहीं जवाब। कमान जानते हैं? कमान कैसे बताऊँ आपको, जानते होंगे आप, जो ये है ना, इस तरह जो बनाते हैं और फिर यहाँ रख के फिर दूर चलाते हैं, इसको कहते हैं कमान। और तरकश कहते हैं जो पीछे, आप आजकल के ज़माने में जो कश्मीरी लोग जाते हैं सेब तोड़ने, तो पीछे जो लगा के रखते जिसमें सेब रखते हैं, उसी तरह तरकश हुआ करता है जिसमें तीर रखते थे। ठीक है, तुर्की। सर वो चाय के बागान में भी होता है, वो हाँ, चाय चाय के बागान में, गुड, चाय के बागान भी होता है, और ये 5वीं 6ठी की किताबों में दिए रहते हैं। तो ये कर रहे हैं, जुज माह तो करीना नहीं तुझ कमान का, तरकश का छोट, खुतूते शुआई नहीं जवाब। इस शेर का मतलब कोई समझाएगा आप में से? तीर रखने का सामान जी, तरकश का तरकश का छूटना। ये अच्छा, सूरज जब निकलता है सुबह सुबह में, आमतौर से गर्म ठंडी के दिनों में, तो ऐसा लगता है ना अलग अलग वहां से रोशनी फूट रही है, ऐसा लगता है, लाल, पीला, हरा, बैगनी और रंग के मुख्तलिफ। तो यही है, इसी चीज को कह रहे हैं शुआ, यानी सूरज के खुतूत, खुतूत मतलब कर दिया कई लाइनें होती है। तरकश का छूटना, जैसे कहा कि शुआ यानी सूरज के से जो शुआएं छूटती हैं उसका जवाब नहीं है, उसे तशबीह देना चाह रहे हैं। अब आखिर में क्या हो जाता है, अर्ज मतलब व दुआ।
कोई भी इंसान जब वकील में क्या किसी से पैसा उधार लेना उसका तारीफ करता है, बड़े अच्छे इंसान है आप, ये है वो, उनका 20,000 रुपया दे दो ना, 1 महीना लौटा देंगे। अर्ज उसी का मतलब है, मतलब वो दुआ। चलिए कोई पढ़िए आप में से यहाँ से। जी। अर्ज मतलब व दुआ। मदह के बाद शायर अपने एगराज व मतालिब या ज़ाती हालात के बयान अगराज अगराज व मतालिब या ज़ाती हालात के बयान के बाद ममदूह की तरक्की उमर जाए के लिए दुआ और उसके दुश्मनों के लिए बद्दुआ करके कसीदा ख़त्म कर देता है। इस हिस्से में अगरचे दुआ के साथ साथ हुस्न तलब, ज़ाती हालात का बयान और दुश्मनों के हक़ में बद्दुआ के अज्ज़ाए भी शामिल होते हैं, लेकिन चूँकि दुआ को मरकज़ियत हासिल होती है इसलिए इसको अमूमन दुआ ही कहते हैं। चूँकि दुआ के अशार के बाद सिलसिला कलाम मुनक़ता हो जाता है और सुनने वाले को ज़हन में यही रह जाते हैं कि इसलिए बहुत कुछ इन्हें अशार पर कसीदे की कामयाबी का इन्हिसार होता है। हुस्न तलब में शायर अपना मुदा ज़ाहिर करता है, इसलिए ये भी काफ़ी नाजुक मकाम होता है। इस मौके पर ममदूह की नफ्सियात का पूरा ख्याल रखकर इजहार मतालिब इस ढंग से करना चाहिए कि इसकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे। मसलन कसीदा दर मदह दर मदह बसनत खा में सौदा कहते हैं, लेकिन न ये समझियो इस गुफ्तगू से हरगिज मंसूर मुझको तेरी हिम्मत का इम्तिहान हो, किस वास्ते के तुझको इतना ही चाहिए है, जामा हो एक बार में खाने को नीम ना हो, सो तू ज्यादा इसके तीरा करम ही तुझ पर। क्या समझे बताइए, कुछ समझे हैं तो बताइए, कुछ समझ में अगर आ रहा हो तो बताइए। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। क्या करें? सर इसमें मतलब कि दुआ पर खत्म होता है, दुआ दी जाती है, ओ मतलब और कुछ बताइए। बताया ना अपना मुद्दा दुआ के साथ हुस्ने तलब और अपना मुद्दा जाहिर करता है, अपनी तारीफ कर लेता है, बात बना लेता है, उसके बाद क्या कहता है, मुझे भी कुछ इनाम और एजाज से नवाजिए। मसलन कसीदा दरमदह बसंत खान नाम है, उनके बारे में सौदा लिखती, लेकिन न ये समझियो इस गुफ्तगू से हरगिज मंजूर मुझको तेरी हिम्मत का इम्तिहान हो, किस वास्ते के मुझको इतना ही चाहिए, जामा हो एक बर में खाने के नीम नान, सो तू ज्यादा इससे तेरा करम ही मुझ पर, सो तू ज्यादा इससे करम ही मुझ पर। अच्छा ये देखिए पहली लाइन नहीं कहता अरे ये मत समझिए कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, किसी के यहाँ जाते हैं तो समझ जाता है अरे फिर तो आ गया मांगने, दोस्त ने तो भाई बेतकल्लुफी होती है। पहली लाइन में क्या कहते हैं, लेकिन न ये समझियो इस गुफ्तगू से हरगिज मंजूर मुझको तेरी हिम्मत का इम्तिहान, मतलब तारीफ कर रहे यार आपकी, मैं इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, मैं आप नहीं कहते मेरा मजाक उड़ा रहे हो, अरे मैं तेरी हिम्मत का इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, फिर आगे अपने फरमाइश कर रहे हैं, तो मिसाल दे रहे हैं। हम तो बजाबता पूरा कसीदा पढ़ेंगे इनका, जो इनकी कसीदा शामिल है हमारे दाखिल इंसान में। कुफरान नेमत ऊपर कादिर न हो ये जुबान, न कादिर न ये जुबान हो, मतलब कुफरान नेमत कि अगर आप हमें कुछ नवाजेंगे तो हम आपके हमेशा के लिए शुक्रगुजार होंगे, नाशुक्री नहीं करेंगे, इसको कहते हैं कुफरान नेमत। इतनी ही आरजू है कुछ उम्र हो जो बाकी, मसरफ जहां में उसका तेरे कदम का यहाँ हो, मतलब कह रहे हैं कि आरजू इतनी है कि अगर जिंदगी कुछ बाकी है तो आपके मसरफ में और आपके काम में हम लगा देंगे। आगे करें तो दुआ में आमतौर तरीके से इख्तियार किया गया है कि शायद अपने आप को मुखातब करके कहता है कि अब सिलसिला कलाम को दुआया पर ख़त्म और फिर दुआ देता है। मदाम फूले फले दोस्तों का नख्ल मुराद, रहें दाग अददकार है दिल मायूस। मदाम कहते हैं हमेशा हमेश, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है मदाम, मादामा, अरबी कोई है इसमें जानता है, मादामा से कर दिया मदाम उर्दू में, हमेशा हमेश जी सर। जी
तो ये मदाम मादामा से है, मदाम कर दिया। यानी हमेशा तुम दोस्तों नखल कहते हैं, नखल मुराद से यहाँ मुराद हो जाएगा अच्छी आरजू हो जाएगा। जो है नखल के मतलब असल होते हैं, अरबी जुबान का लफ्ज है, शहद के माने में आते हैं। ठीक, नखल शहद, मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, नहल है ना शायद, नखल है, नखल का माना बताइए तो शहद ही, नखल है खजूर के दरख्त के माने में। खजूर के दरख्त के बारे में, हाँ समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, शुक्रिया। ये जो नखल है खजूर का दरख्त, अच्छा मिसाल कितनी अच्छी दिया, खजूर का जो दरख्त होता है सीधा होता है, उसमें किसी किस्म की कोई लचक नहीं होती है। तो दोस्तों का नखल मुराद यानी दोस्तों का जो असल है और जो दिली जज्बा है वो पले बढ़े और कबूल आगे बढ़े। रहीने दागे आदत कार है दिल मायूस, तेरे जो दिल मायूस है, रहीन मैंने मरहूने मन्नत है ना, तो इसका सीधा मतलब वो दुआ दे रहा है कि जो दोस्त हमारे हैं या जो ममदू हैं उनकी जो मुरादें हैं वो खजूर के दरख्त की तरह, खजूर के दरख्त नाम मत रखिए तब समझ में आएगी चीज़, जैसे खजूर का दरख्त बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता है और मजबूत होता है। और हदीस में तो एक जगह मिसाल भी दी गई है उसकी मतलब सीधाई से, उस तरह उनकी जो है कि मुरादें पूरी हो और उनके दिल जो है मायूस कभी नहीं रहे। ये तो कसीदे के ज़्यादा तरकीबी हो गए। अब हम सीधे सीधे चलेंगे। अच्छा एक चीज़ और पढ़ लीजिए, कसीदा की खूबी भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो और पढ़ लीजिए, फिर हम सीधे आगे चलेंगे। ये तो पढ़ लिए थे ना कल, कसीदे की खूबी, इसका मुताला कीजिएगा। नो सर, कसीदा नो कल सर। इसका मुताला, हाँ कल इसका मुताला कीजिए, ये घरेलू मश्क है आपका। अब देखिए फिर से कसीदे का आगाज और इर्तिका, इसलिए हम किताब पढ़ाते हैं। हाँ अब यहाँ से कुछ चीज़ें आपको जानेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए, थोड़ा टाइम ही लगेगा, कोई बात नहीं। पढ़िए कोई आप में से बुलंद आवाज से। जो इर्तिका उर्दू शायरी के आगाज ही से कसीदा गोई शुरू इत्मीनान हो से गई पढ़िए, थी। पढ़िए उर्दू कसीदे का आगाज व इर्तिका। उर्दू शायरी के आगाज ही से कसीदा गोई शुरू हो मैं गई कह थी। रहा हूँ पहले उन्वान तो पढ़िए उर्दू ताकि कसीदा कसीदे का आगाज व इर्तिका। तारीफ। उर्दू शायरी के आगाज ही से कसीदा गोई शुरू हो गई थी और इसके इब्तदाई नमूने दक्कन ही में मिलते हैं। सल्तनत गोलकंडा के कुतुब शाही बादशाह सुल्तान मोहम्मद अली कुली कुतुब शाह ने भी और उर्दू कसीदे लिखे हैं। यह कसीदा का पहला दौर कहलाता है। शुमाली हिंद में उर्दू के सबसे मशहूर कसीदा गो मिर्जा सौदा दहलवी हैं। इस इकाई में हम उर्दू कसीदा के आगाज और इर्तिका से बहस करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। इस पैराग्राफ को याद करने की ज़रूरत है, इसमें कई कई चीज़ें हैं। नंबर 1, कसीदे का आगाज़ कहाँ से हुआ। देखिए दक्कन में इसका आगाज़ हुआ, ये बात ख़त्म, ये आपको याद कर लेना है। अब दक्कन का कौन सा शायर है जिसकी तरफ निस्बत की जाती है कि उसने कसीदे के आगाज़ की, तो कह रहे मोहम्मद अली, सुल्तान मोहम्मद अली कुतुब शाह, यानी सुल्तान कुली कुतुब शाह इसको सीधे कहिए, ये अली नहीं है वो कुली है, ये टाइपिंग की गड़बड़ी है यहाँ, अली नहीं है क्या है, ये सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी उर्दू कसीदे लिखे, ये कसीदे का पहला दौर है। तो दक्कन में सल्तनत गोलकंडा से कसीदे का आगाज होता है और इसमें सरे फहरिस्त नाम आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। ठीक है, शुमाल में आइए तो उर्दू के सबसे मशहूर कसीदा गो मिर्जा सौदा दहलवी हैं। 3 बातें आपको याद हो गई इसमें, कसीदे का आगाज और इर्तिका दक्कन से, दक्कन के किससे, तो कुली कुतुब शाह। फिर शुमाल हिंद में जाते हैं तो मशहूर और मारूफ कौन है, तो मशहूर और मारूफ इस ताल्लुक से मिर्जा सौदा दहलवी, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है,
इधर पढ़ना है थोड़ा सा। चलिए, आप में से 3-4 लोगों ने शुरू किया था, उसमें से एक ने पढ़ लिया, दूसरा कोई पढ़िए। जो शुरू किया था पहले वही लोग खत्म कर लीजिए, फिर नए लोग शुरू कीजिएगा। कहाँ से सर? अभी तो तुम लोग शुरू किए थे। तमहीद पहला दौर उर्दू की तमाम कदम असनाफ व सुखन की तरह कसीदे की इब्तदाई असनाफ व सुखन की तरह कसीदे की इब्तदाई नमूने भी दक्कन में मिलते हैं। गोलकंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह खुद एक जबरदस्त शायर थे और उन्होंने कसीदे भी लिखे, लेकिन इस जमाने में दक्कनी जुबान की आमेज़श ज्यादा थी। दक्कन के और शोरा नुसरती वगैरह ने भी कसायद लिखे, लेकिन जुबान और मज़ामीन दोनों के लिहाज से नामुकम्मल है। दूसरा दौर शिमाली हिंद में वली का दौर है, जो उस दौर के सबसे बड़े मशहूर कशीदा वो मिर्जा सौदा देहलवी है। दूसरा दौर शिमाली हिंद में दिल्ली का दौर है और इस दौर के सबसे मशहूर कसीदा गो मिर्जा सौदा देहलवी हैं। सौदा ने बेशुमार कसीदे लिखे, जिनमें हम्दो नात, मुनक़बत, मदह, हिज्व, मनक़बत, मदह, हिज्व, शहर आशूब वगैरह सब कुछ है। सौदा के बाद मुस्तफ़ा व इंशा ने भी कसीदे लिखे, लेकिन कोई इजाफा नहीं किया। बस कल जब मैंने बताया था हिजू नहीं होता है, वो हज होता है, तो आप लोगों को रोज अकेला अकेले क्यों सही कराना पड़ेगा? सब लोग सुनिए, जब कोई भी पढ़े मैं बताऊं तो उस पर गौर कीजिए। एक लफ्ज क्या है? लफ्ज हज जो है। सौदा के बाद मुसहाफी है, वह मुसहाफी व इंशा ने भी कसीदे लिखे, लेकिन कोई इजाफा नहीं किया, यानी उन्हीं के पुरानी रविश को उन्होंने दोहराया। उनके बाद ज़ौक़ का नंबर है। ज़ौक़ के कसायद भी शानदार और मुकम्मल हैं, लेकिन वाक़या निगारी की कमी है। ज़ौक़ के हम असर मोमिन व गालिब ने भी कसायद लिखे और बाज़ अच्छे लिखे। तीसरा दौर लखनऊ का दौर है। इस दौर के नुमाइंदा कसीदा गो में मुनीर शिकवाबादी, अमीर मीनाई, जलाल लखनवी काबिल ज़िक्र हैं। इन सब ने कसरत से कसायद लिखे और मुकम्मल व आला लिखे। इस ज़माने के एक और मुमताज़ नातिया कसीदा गो मुहसिन काकोरवी हैं। चौथा दौर 20वीं सदी का दौर है, जिसमें कसीदा गोई तकरीबन मतरूक हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कसीदे बादशाहों और अहले दौलत की मदह में लिखे गए, उनकी फ़न कसीदा गोई के एतबार से कोई वक्त न रही और कसीदे से आम दिलचस्पी न रहने के सबब उनकी शोहरत भी नहीं रही। इस पैराग्राफ में आपको क्या याद कर लेना है? नंबर 1, कसीदे के कितने दौर गुजरे हैं? कमेंट कीजिए सब लोग। कमेंट बोलना नहीं है किसी को, जल्दी बताइए। 4, 5 कहाँ हो गए? 4 कसीदे के 4 दौर। पहला दौर दक्कन, दूसरा दौर दिल्ली, तीसरा दौर लखनऊ और चौथा दौर जिसमें कसीदा किसका शिकार हो गया? जवाल का शिकार हो गया। चलिए, अब यहाँ भी कुछ चीज़ें इसका भी मुझे लगता है कि पढ़ लेना चाहिए। कुछ किताबें मिलेंगे यहाँ। असले मौजू अलीम कैसर कौन है? अलीम कैसर, बार बार माइक खुल रही है और पढ़ नहीं पा रही है। पढ़िए, मैं आपको नाम दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, पढ़िए आप। अलीम जी, कैसर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असूल मौजू उर्दू की तमाम कदीम असनाफ सुकन की तरह कसीदे की इब्तिदा नमूने भी दक्कन में मिलते हैं। बहमनी सुल्तान के जवाल के बाद दक्कन में 5 खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हुई। नंबर 1 गोलकुंडा में कुतुब शाही। नंबर 2 बीजापुर में आदिल शाही। नंबर 3 अहमद नगरी में निजाम शाही। नंबर 4 बराबर ये बरार है बरार में इमाद शाही। जी, बरार में इमाद शाही। और नंबर 5 बीदर में बुरीद शाही। दक्कन में उर्दू शायरी की तरक्की में अव्वल जिक्र 2 सल्तनत खास अहमियत रखती हैं। नंबर 1 गोलकुंडा का सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही को इत्मीनान से पढ़िए। ऐसा हो कि आप उस्ताद हैं, हम शागिर्द हैं आपके। कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए।
गोलकुंडा का सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद एक जबरदस्त शायर था। उसके कुलियात में मसनवी, तरजीह बंद, गजल और मरसिया के अलावा कसीदे भी मिलते हैं। 145 145 हिजरी में 100 है वो, गोलकुंडा अगर जी आपको आपके घर वाले 1045 1045 की जगह जी 100 रुपया जी 45 देंगे तो ले लेंगे आप? 45 झगड़ा करने लगेंगे ना घर वाले से? घर वाले अगर आपको 1045 जगह पर 145 देंगे तो लेंगे? जी 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 ले सॉरी लेंगे? 1045 हिजरी में गोलकुंडा के एक शायर मुल्ला कुतबी ने शेख यूसुफ दहलवी के एक फारसी कसीदा मौसूम बा तोहफतुल नसाई का दखनी में तर्जुमा किया। ये कसीदा मजहब के अहकाम व आदाब के बयान में है और 781 अशार पर मुश्तमिल है। मुल्ला कुतुबी ने फारसी कसीदे की जमीन में शेर बा शेर तर्जुमा किया है। कुतुबी के बाद बीजापुर के शाही नुसरती और अमीनुद्दीन आला के कसीदों का पता चलता है। अमीनुद्दीन आला के 2 कसीदे जो मिलते हैं उनमें से एक उनका वालिद शाह बुरहानुद्दीन की शान में है और दूसरा मोहब्बतनामा या मोहब्बत नामा एक इश्किया नज्म है जो कसीदे की हैयत में लिखी गई है। इस जमाने में हवालों से मालूम होता है कि रस्मी और हाशमी ने भी कसीदे लिखे थे, लेकिन उन कसीदों का सुराग नहीं मिलता। बस औरंगजेब ने बस बस चलिए, अब यहाँ से कुछ चीज बता रहे हैं कि देखिए ये सवाल आया भी था, इसी पैराग्राफ के खुलासा समझ लीजिए कि आया भी था। सबसे पहले सवाल अगर ये आ जाए कि पैराग्राफ में तो आया था, इस तरह आ जाए कि बहमनी सल्तनत के जवाल के बाद दक्कन में कितनी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हुई? 5। अब ये सवाल कई तरीके से भी आ सकते हैं, जैसे अहमदनगर में कौन सी हुकूमत कायम थी? निजाम शाही। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकंडा में कुतुब शाही, और बरार में इमाद शाही, बीदर में बरीद शाही। ये आपको याद कर लेना कहाँ कौन सी हुकूमत कायम थी, ठीक है। कारण दक्कन में उर्दू शायरी की तरक्की में अव्वलु जिक्र पढ़ते हैं उसको, 2 सल्तनतें खास अहमियत रखती हैं। कौन? गोलकंडा का सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही खुद एक जबरदस्त शायर था। एक तो ये हो गए, ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके कुल्लियात में मसनवी, तरजीबंद, गजल और मरसिया के अलावा कसीदे भी मिलते हैं। 1045 हिजरी में गोलकंडे के एक शायर मुल्ला कुतुबी ने शेख यूसुफ देहलवी के एक फारसी कसीदा मौसूम बतोहफतुन नसाइह। अब यहाँ एक चीज याद करना है, चूंकि पुरानी किताब है, तोहफतुन नसाइह किसी किताब है? शेख यूसुफ देहलवी की। किसी किताब है? शेख यूसुफ देहलवी की किताब है। तर्जुमा किसने किया? मुल्ला कुतुबी ने। इसके मज़ामीन कैसे थे? मजहबी, ठीक। सर तर्जुमा किसने तर्जुमा मुल्ला कुतुबी ने किया। देखिए ना यहाँ, मुल्ला कुतुबी ने शेख यूसुफ देहलवी के एक फारसी कसीदा जिसका नाम था तोहफतुन नसाए का दक्कनी में तर्जुमा किया, ठीक है। तो एक तो हो गए कुली कुतुब शाह। दूसरे तरफ जो आते हैं बीजापुर में नुसरती होते हैं। बीजापुर में हेलो, हाँ रुक जाओ, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहे क्लास में हूँ, ठीक। बीजापुर के शायर मेरा भाई छोटा है, फोन नहीं उठाता तो नाराज हो जाता हूँ, तुरंत शिकायत लगाता है, फोन नहीं उठाया। कुतुबी कुतुब शाही का क्या आदिल शाही दौर में? एक सेकेंड, कुतुबी का ताल्लुक कुतुब शाही से है, न कि आदिल शाही से, जैसा कि इन्होंने लिखा साफ। अच्छा एक बात और भी समझ लीजिए, कुतुब शाही और आदिल शाही दोनों साथ ही साथ जारी थे। अभी पढ़ते हैं आगे, समझ में आ जाएगा। कुतुबी के बाद बीजापुर के शायर नुसरती और अमीनुद्दौला। पता ये चला कि कुतुबी का ताल्लुक कुतुब शाही से है, समझ गए? साफ इन्होंने लिखा ना यहाँ, कुतुबी के बाद, मतलब कुतुबी का ताल्लुक किससे है? गोलकंडा से है। उसके बाद एक तो कुली कुतुब शाह कुतुबी का जिक्र आ गया। अब आ रहा है बीजापुर में नुसरती और अमीनुद्दौला के कसीदों का पता चलता है।
अमीन उद्दौला आला के 2 कसीदे जो मिलते हैं उनमें से एक उनके वालिद शाह बुरहानुद्दीन की शान में है। अच्छा यहाँ कुछ चीज समझ लीजिएगा, कभी कभी सवाल यहाँ से बनता है अमीनुद्दीन आला का बुरहानुद्दीन जान से क्या रिश्ता था? तो अमीनुद्दीन आला तो बाप बेटे का। जी बाप बेटे का, ठीक है। अमीनुद्दीन आला वो बेटे थे, किसके बेटे थे? शाह बुरहानुद्दीन के बेटे थे, ये आपको याद रखना है। और दूसरा मुहिब नामा या मोहब्बत नामा एक इश्किया नज्म, ये किसके हैं? ये अमीनुद्दीन आला के हैं, अमीनुद्दीन आला के हैं। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, यहाँ अमीनुद्दीन आला के 2 कसीदे मिलते हैं, उनमें एक उनके वालिद शाह बुरहानुद्दीन जानम की शान में है और दूसरा क्या है? मोहब्बतनामा या मुहिबनामा, एक इश्किया है जो कसीदे की हयत में लिखी। लिख लीजिएगा, मोहब्बतनामा किसका है? अमीनुद्दीन आला के। करे कि इसी जमाने में हवालों से मालूम होता है कि रुस्तमी और हाशमी ने भी कसीदे लिखे, लेकिन उन कसीदों का सुराग नहीं मिलता, नहीं पता नहीं चलता को कहाँ गए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ थोड़ा सा और पढ़ते हैं, चलिए कोई और पढ़िए, यहाँ से पढ़िए फौरन। औरंगजेब ने 1097 हिजरी में बीजापुर और 1098 हिजरी में गोलकुंडा को फतह करके मुगलिया सल्तनत में शामिल कर लिया और दक्कन में औरंगाबाद को सदर मुकाम करार दिया। तो बीजापुर और गोलकुंडा के बजाय औरंगाबाद शेरो शायरी का मरकज बन गया। औरंगाबाद शोरा में दिल्ली और शिराज के कलाम में कसीदे मिलते हैं। इसी जमाने में गुजरात के एक शायर अमीन के एक नातिया कसीदा का पता चलता है जो 1099 हिजरी में लिखा गया था। मुसन्निफ उर्दू कदीम ने उस कसीदे के हस्ब झेल इशारे नकल किए हैं। ठीक है, रुक जाइए। औरंगाबाद शुआरा में, अब ये दिल्ली नहीं है, चूंकि औरंगाबाद का जब जिक्र आ गया ना यहाँ, ये वली है, वली और सिराज के कलाम में कसीदे मिलते हैं। वली का ताल्लुक किससे? औरंगाबाद से था। फिर इसी जमाने में गुजरात के एक शायर अमीन के एक नातिया कसीदे का पता चलता है जो 1099 हिजरी में लिखा गया। मुसन्निफ उर्दू कदीम, बताइए किताब किसकी है? शमसुल्लाह कादरी की है? किसकी है? शमसुल्लाह कादरी, सही है ना? लिख लीजिए, उर्दू कदीम, उसमें जिक्र क्या है? अव्वल जी, ये शेर 1-2 लाइन पढ़ लीजिए ताकि मालूम हो जाए। अव्वल कसीदा फारसी था सो हर एक जागा मोने, पीछू लिखा दर गुजरी आया अमीन के दिल भीतर, दिल के भीतर, दिल के अंदर। जब 1000 ऊपर हुए हिजरी 929 बरस, तब ए जमादियुस्सानी में लिखा कसीदा अद शुकर। तारीख 22वीं थी, रोज जुमा पैदा हुआ, बारे खुदा के फजल सू पूरा किया वक्त सहर। ठीक है, ये बातें चल रही हैं, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अब नुसरती हैं, तो नुसरती दक्कन के सबसे बुलंद पाया कसीदा को है, याद रख लीजिएगा। अगर ये सवाल सीधे सीधे आ जाए कि नुसरती के बारे में क्या लिखा, दक्कन के सबसे बुलंद पाया, इसी तरफ याद कर लीजिए। सवाल ये आ जाएगा सबसे बुलंद पाया कसीदा को कौन है? नुसरती है। ये बीजापुर के दरबारी शायर थे। इब्राहिम आदिल शाह सानी से उनको मलिक शोरा का खिताब अता किया था। नुसरती के 7 कसीदे उसकी मशहूर मसनवी अलीनामा में शामिल है। तो नुसरती कितने कसीदे हैं? 7, किसमें शामिल है? अलीनामा में। एक तवील कसीदा मिराज के बयान में है और मिराज नामा के नाम से मशहूर है। मिराज नामा किसका कसीदा है? नुसरती। उसके आखिर में नुसरती ने मोहम्मद आदिल शाह की मदह में भी मदह भी की है। एक कसीदा अली आदिल शाह के मदह में है, एक हजू कसीदा भी है और एक कसीदा घोड़े के मजम्मत में है। इसके अलावा नुसरती के मसनवियों अलीनामा और गुलशन इश्क के मंजूर उन्वानात को यकजा करके 2 कसीदे और बन जाते हैं। मसनवी अलीनामा, ये सब लिखना है आपको। अलीनामा किसका है? गुलशन इश्क किसकी किताब है?
یہ سب لکھ لیجئے, تاریخ میں لکھوا دوں گا, ٹینشن مت لیجئے, لیکن ابھی کتاب نوٹ کرتے چلیے. علی نامہ نصرتی کا ہے اور گلشن عشق یہ بھی نصرتی کی ہے. آگے چلیے. پھر کریں جس کے بیچ میں نصرتی نے قصیدے لکھے. چونکہ علی عادل شاہ کی لڑائی اور فتوحات درپیش تھی, اس لیے کئی قصیدوں میں وہ حقیقی واقعات, جنگ بیان کیے اور بادشاہ کے ہاتھی, گھوڑے اور تلوار کی تعریف کی ہے. ٹھیک ہے. قصیدہ موسوم و معراج نامہ میں محمد عادل شاہ کی مدح میں لکھتے ہیں. یہ پڑھیے, کوئی پڑھے گا آپ میں سے ہمت کر کے؟ یہ پڑھ لیجیے, آج کے آخری ہوگا, یہ پڑھیے, کوشش کیجیے. حمد میں منعم کرا خلق پہ اس دور کے, ہے جو سمی رسول خسروے ملک دکن, صاحب دین و دل مالک ملک و ملل. کل یہی تو میں لکھا تھا فیس بک پر. عالم علم و عمل عامل نص و سنن, معدن جود و سخا منبع لطف و عطا, حامی دین با وفا ماہی کفر و کہن, صاحب فضل و ہنر صف شکن بحر و بر. کل یہی تو لکھا تھا. نصرتی کے جو اصطلاحیں ہیں, اس کے تراکیب ہیں, اس کو آپ یاد کر لیجئے. مالک ملک و ملل, کبھی بھی سوال آ سکتا ہے. یہ عالم علم و عمل, معدن جود و سخا, حامی دین با وفا, اس کو لکھ لیجئے گا, یہ ذہن رکھیے گا. سمجھ گئے؟ علی عادل شاہ ثانی کی تاریخ, محمد عادل شاہ کی مدح میں لکھتے ہیں. اس ترکیب کو ضرور یاد کر لیجیے گا. کہ مل جائے فتح و ظفر ہادی شمشیر زن. کتنا اچھا تھا, پڑھے نہیں آپ لوگ؟ چلیے کل سے یہاں سے پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. شمالی ہند کے قصائد, یہ سب چیزیں پڑھ لیجیے گا. تھوڑا اس کے بارے میں, کیا بارے میں بتائیں؟ مدیہ قصائد ہے, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حمد میں منعم کرا خلق پہ اس دور کے. منعم کا آتی انعام کرنے والا, یاد نہیں کرنا ہے, آپ ذہن میں رکھیے چیزوں کو. جس کیسے لکھتے ہیں, جیسے عالم علم و عمل, مالک ملک و ملل, حامی دین با وفا. یہ کس کی تراکیب ہے؟ اس میں کون سا معنی آپ کو نہیں آ رہا بتائیے. حمد کہتے ہیں تعریف کو, منعم کہتے ہیں انعام کرنے والے کو, کرا مطلب کرنا, خلق مطلب مخلوق, سمی رسول, سمی رسول کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول کے نام سے موسوم, یعنی اس کی امتی. خسروے ملک و دکن, جس طرح خسرو کا مقام و مرتبہ ہے ادب میں, اسی طرح جو ہے کہ تو محمد عادل شاہ کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خسرو کی طرح ہیں دکن کے علاقے میں. آپ صاحب دل ہیں اور ملک اور ملل اور لوگوں کے مالک ہیں. آپ عالم ہیں, جاننے والے ہیں, نص و سنن یعنی کتاب و سنت کے پر عمل پیرا ہیں. معدن جود و سخا, یعنی آپ کے اندر اتنی سخاوت ہے, فندی فیاض ہیں کہ پہاڑ ہیں. لطف و عطا, آپ تو مہربان ہیں. حامی دین با وفا, آپ صحیح اور سیدھے دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں, اس پر چلنے والے ہیں. ماہی کفر کہن, یعنی غلط چیزوں سے آپ روکنے والے ہیں. صاحب فضل و ہنر, صف شکن بحر و بر, صاحب فضل و ہنر, آپ کے پاس علم ہے, دولت ہے. دولت مطلب علم کی دولت ہے. صف یعنی شکن, صف شکن بحر و بر, یعنی چاہے سمندر ہو یا خشک ہو, اس کے دریا کو چیرنے والے ہیں آپ. اس طرح ہیں. ملجا فتح و ظفر, ملجا کہتے ہیں جگہ کو, مسکن کو. ملجا فتح و ظفر ہادی شمشیر و زن, یعنی آپ کی قسمت میں تو ہمیشہ بادشاہت ہے. آپ شکست حاصل کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ شکست دینے والے ہیں. آپ ہمیشہ فتح حاصل کرنے والے ہیں. یہ چیز ہے. کل اس کے آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو تیاری کر کے آئیے تاکہ کلاس زیادہ ہو, مزہ آئے, ہے نا.